Good morning, students. Good morning to all. प्रीवियस क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर का रिवीजन करना स्टार्ट किए. We have started the chapter motion, and I think we have completed the topic distance and displacement. Am I right? Distance and displacement तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है. Okay. Now we will discuss few more points. Okay, Sakshi, Piyush, thank you. Speed and velocity. हम लोग सभी चैप्टर का अब रिवीजन करेंगे. एक दिन में हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक दो दिन में. फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो स्पीड एंड वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी डिफाइन करेंगे. स्पीड को डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. डिस्टेंस per unit time is called speed. Speed is a scalar quantity because speed has no fixed direction, so it is scalar quantity. SI unit of speed is meter per second. On the other hand, this velocity, displacement per unit time is called velocity. Displacement per unit time is called velocity. ठीक है. Velocity is a vector quantity because it has a specific direction. SI unit of velocity is meter per second. We can differentiate speed and velocity. स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग एटलीस्ट 3 और 4 पॉइंट्स से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. स्पीड नेवर बी जीरो. स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी में भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है. ठीक है. तो स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी. Rate of change of velocity is called acceleration. If an object changes its velocity from 20 km per hour to 30 km per hour during 1 hour, this change in velocity is called acceleration. So rate of change of velocity is called acceleration. SI unit of velocity is meter per second. अगर मीटर सेकेंड पर सेकेंड में हम लोग इसको एग्जांपल लें, इफ एन ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 40 मीटर पर सेकेंड, देन एक्सीलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, v माइनस u बाय t. तो 40 माइनस 20 बाई 2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ठीक है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम लोग एक्सीलरेशन के लिए भी इक्वेशन फाइंड करेंगे. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. वी विल प्रूव इट. And retardation or deceleration, negative acceleration is called retardation or deceleration. Negative acceleration means if an object has initial velocity 40 meter per second and after 2 seconds its velocity decreased to 20 meter per second, then it is retardation. Here acceleration equal to final velocity minus initial velocity by time taken. So 20 minus 40 is 20 minus 40 by 2,
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो है ये एक्सीलरेशन, लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन जब होगा तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे और डिसिलरेशन। ओके, तो ये सभी टर्म्स हैं। नेक्स्ट टर्म इज यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? If an object covers equal distance in equal interval of time, then the motion is called uniform motion. If an object covers equal distance in equal interval of time, then we say that it is uniform motion. There are several examples of uniform motion in nature. Revolution of Earth, rotation of Earth, revolution of Moon around Earth. These are examples of uniform motion. They have fixed time interval to complete their revolution or rotation. और डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्हीकल 1 आवर में 10 किलोमीटर जाता है, नेक्स्ट आवर में फिर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ओके, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. If an object covers an equal distance in equal interval of time, if an object covers an equal distance in equal interval of time, then motion is called non-uniform motion. If a car covers 10 kilometer in 2 hours, next 10 kilometer in 1 hour, and another next 10 kilometer in 3 hours. Here, equal distance in unequal interval of time. You may say that if car cover 10 kilometer in 1 hour and next 5 kilometer cover in 1 hour, another 10 kilometer cover in 3 hours, 1 hour. So equal interval of time but unequal distance. If unequal distance cover in equal interval of time, then such kind of motion is called non-uniform motion. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल व्हीकल मूव्स ऑन ए बिजी ट्रैफिक, जहां पर ट्रैफिक के कारण कभी स्पीड ज्यादा कभी कम. व्हीकल मूविंग ऑन ए जिग-जैग रोड, टेढ़ा मेढ़ा रोड पर चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है. These are example of non-uniform motion. Okay, next term is circular motion. If an object moves on a circular path, if an object moves on a circular path, then their motion is called circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ठीक है, सर्कुलर मोशन में एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हो. ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है. एथलेटिक्स में भी सर्कुलर ट्रैक पर एथलीट मूव करता है, रन करता है. तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो निकालते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में, जो स्पीड निकालते हैं, एक सर्कुलर मोशन यानी कि 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस होता है. 2 पाई आर अगर टाइम टी लगता है तो स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी होता है, क्योंकि 1 राउंड रिवॉल्यूशन करने में जो डिस्टेंस कवर होता है वो सरकमफेरेंस के बराबर. तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर और जो टाइम टेकन होगा 2 पाई आर बाई टी. इससे स्पीड निकालेंगे. अगर टाइम निकालना है तो 2 पाई आर बाय वेलोसिटी, 2 पाई आर बाय स्पीड कर देंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इससे टाइम निकलेगा. तो दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर मोशन. एंड equation of motion, we have to prove the equation of motion, 3 equation of motion.
ग्राफिकली मेथड से हम लोग इसको प्रूव करें, सिलेबस के हिसाब से ग्राफिकली प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चा लिख करके भेज रहा है कि अलग अलग चैप्टर्स के बारे में, तो हम लोग रिवीजन राउंड में है। अब मोशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर इसके बाद वाला चैप्टर में आएंगे, ऑल चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ओके, मोशन के बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड v s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ग्राफिकली मेथड से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तुम लोग यहाँ पर पहले डायग्राम बनाओ, तुम लोग डायग्राम बनाओगे, बोर्ड इज विजिबल, जरा लिख करके चैट में बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके थैंक यू। ओके, हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज में आएंगे। टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस हमेशा टाइम के लिए होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखो। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो वेलोसिटी के लिए होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये डिस्टेंस के लिए होगा। तो वेलोसिटी और ये टाइम। यहाँ पर हमने ए से बी लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u होगा और फाइनल वेलोसिटी v होगा। ये स्लोप है, वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ए को मिलाए टाइम एक्सिस से, बी को भी मिलाए, परपेंडिकुलर लाइन ए को सी से मिलाए। ठीक है, ये डायग्राम जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमारा सिमिलर है, सब में सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, ए पर जब है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ठीक है, सबका फेयर कॉपी में भी लिखा हुआ है, अभी रिवीजन में समझना है। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ठीक है, कुछ देर के बाद t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो जाता है। ये b है पॉइंट, ये a है, ये c है, ये d लिखे हैं, यहाँ e लिखे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना है। दिस स्लोप AB जो स्लोप है ये हमें एक्सीलरेशन देता है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन बिकॉज दिस स्लोप इज चेंज इन वेलोसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में u से v हुआ है, स्लोप जो है नीचे से ऊपर की तरफ में गया है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी को बतला रहा है पर यूनिट टाइम। तो द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर स्लोप क्या है वो लिखते हैं। स्लोप AB, ये AB स्लोप जो निकलेगा ये BC बाय AC निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। स्लोप इक्वल टू जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और बेस AC है।
BC बाय AC, ये स्लोप है। ठीक है, स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन देता है। स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन, तो ये AB को हम लोग एक्सीलरेशन को A से डिनोट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल a लिखेंगे। थोड़ा सा और नीचे करके लिखते हैं, लाइट आ रहा हो। A इक्वल टू एक्सीलरेशन A इक्वल टू BC, ये BC को हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस BC, BD माइनस BC। यहाँ पर BD माइनस CD लिखे हैं, लाइट के कारण अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो BD माइनस CD। ये BC को हम लोग लिख सकते हैं BD माइनस CD, यहाँ पर CD लिखे हैं। CD, BD माइनस CD और डिवाइड बाय AC। बोल भी रहे, सुन लो। A इक्वल टू BC को लिखे BD माइनस CD बाय AC। तो BD है इनिशियल वेलोसिटी U, CD है, ये BD है फाइनल वेलोसिटी V, CD है इनिशियल वेलोसिटी U, और AC इक्वल टू टाइम है। ये AC जो है वो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये टाइम लिया जाएगा। A इक्वल टू V माइनस U बाई टी, BD हो गया V, CD हो गया U और टाइम हो गया T, तो V माइनस U बाय टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर सकते हो, तो मेन फॉर्मूला A इक्वल टू V माइनस U बाई टी आ गया। V माइनस U इक्वल टू A इंटू टी, V माइनस U इक्वल टू A इंटू टी, V इक्वल टू U प्लस ए टी। ठीक है, V इक्वल टू U प्लस ए टी, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, V इक्वल टू U प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबका फेयर कॉपी में भी है और इसको रिवाइज करना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे। ओके, ठीक है, इसको हम लोग अब इरेज करते हैं। तुम लोग भी साथ साथ में बनाते चलो कॉपी में। ठीक है, और बनाने के बाद हमको व्हाट्सएप पर भी तुम सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी है, उस पर भी भेज सकते हो अपना क्लास वर्क। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे दूसरा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायग्राम बिल्कुल यही रहेगा।
S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये अब हम लोग प्रूव करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सिमिलर डायग्राम है, लिखेंगे सपोज एन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी वही है। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। और अब क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो। ठीक है, ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू है, इनिशियल वेलोसिटी है। ए इक्वल टू सी डी इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी, बी डी इक्वल टू वी है, और ए सी इक्वल टू डी इक्वल टू टाइम टी है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया किसका निकालेंगे, ये एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया आया है, ए बी डीई, ए बी डीई का एरिया निकालेंगे। दिस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। तो एस जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे हम लोग एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालेंगे। व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू ऑल? ओके तनुजा, पल्लवी, थैंक यू। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया निकालेंगे ए बी डी का। एरिया ए बी डी इक्वल टू क्या है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो अलग अलग दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल, डायग्राम ही बना दिए, एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ये व्हाइट यहां पर आ रहा है। एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखेंगे। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एसी, हाइट बीसी, मल्टीप्लाई, थोड़ा सा नीचे करके लिख रहे हैं, ये व्हाइट है,
रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, DE इंटू CD। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस दे रहा, DE इंटू CD, यहां लिखे हैं DE इंटू CD। ओके, हाँ, ये लिखे हैं DE इंटू CD। यहां पर देखो, हाफ AC मतलब हो गया टाइम T। अब BC को लिखेंगे BD माइनस CD, पहले वाला इक्वेशन में जो कर रहे थे, BC इक्वल टू BD माइनस CD प्लस DE मतलब टाइम T, CD मतलब U, इनिशियल वेलोसिटी U। BD को लिखेंगे यहाँ पर अभी हाफ इंटू T, अब ब्रैकेट में BD माइनस CD, BD को लिखेंगे V और CD को लिखेंगे U, अब प्लस T इंटू U को लिख दिया UT। अब तुमने अभी पहले वाला इक्वेशन में निकाला है V माइनस U इक्वल टू क्या निकाला है, A इंटू T, है ना। वहां पर आफ्टर BC के बाद लिखे प्लस DE मल्टीप्लाई CD। ठीक है, यहाँ पर BC के बाद प्लस DE इंटू CD, S इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC को T और BC को लिखेंगे BD माइनस CD प्लस DE को क्या लिखेंगे T और CD को क्या लिखेंगे U। S इक्वल टू 1/2 इंटू T, अब BD मतलब V और CD मतलब U, V माइनस U प्लस T इंटू U को लिखे AT। तो अब जो है V माइनस यू इक्वल टू इक्वेशन 1 में निकाला है V माइनस यू इक्वल टू 80। V माइनस यू के जगह पर 80। अब इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फाइनल इक्वेशन के रूप में ये वाला। फाइनली ये आ गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहां से ऊपर में S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो ये ग्राफिकली मेथड से ही प्रूव करना है। कुछ बच्चे दूसरा मेथड मैथमेटिकल मेथड का भी यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं, ग्राफिकल मेथड को ही यूज करना। ठीक है, तो अब जो है हम लोग तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, इसी डायग्राम पर बनेगा। अब इसको इरेज करते हैं और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग समझते हैं, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। डायग्राम वही रहेगा, यहां से वहां तक बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा ये।
सिमिलर डायग्राम है. Suppose an object having initial velocity u, after time t, its velocity changes to v. Same diagram. A equal to CD equal to u, BD equal to v, AC equal to D equal to time t है. ठीक है, इसको और तरफ कर दिए तेज. अब जो है इसमें भी एरिया का ही निकालेंगे. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट, और स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, सिमिलर होगा, ये तुम जानते हो. स्ट्रेट लाइन जब मोशन करता है ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होता है. तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. तो फिर ए बी डी ई का एरिया निकालें. ए बी डी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, लिखे TRAP ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. 1/2 इंटू यहाँ पर लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAP. ओके, दीपशिखा अपना चैट में आंसर भेजी है ट्रेपेजियम का एरिया लिख करके. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर लिखे TRAP. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 AE प्लस BD सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा AC, दोनों के बीच का हाइट कितना हो जाएगा AC. अब उसको यहां से हम लिखना शुरू करते हैं. और एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है 1/2 और AE प्लस BD. AE हमारा कितना है, यहां पर देखो AE है U और BD है V. U प्लस V, S इक्वल टू U प्लस V. अब मल्टीप्लाई AC कितना है, यहाँ पर AC जो है वो दोनों के बीच का हाइट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो AC टाइम के बराबर है. वहां पर AC के जगह पर क्या लिखेंगे, टाइम T, है ना. AC के जगह पर टाइम T लिखेंगे. अब यहाँ पर तुम जानते हो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में T इक्वल टू A इक्वल टू V माइनस U बाई टी, A इक्वल टू V माइनस U बाई टी. तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस U बाई A. V माइनस U बाई A लिखेंगे और U प्लस V को V प्लस U लिखेंगे. ये V प्लस U इंटू यहाँ पर लिखे V माइनस U. ये जो है V माइनस U बाय A. तो V प्लस U इंटू V माइनस U क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. अब बाय A और इंटू 2.
ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा।